السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ساری تعریفوں کی مستحق اللہ کی ذات ہے اور بے پایاں، لا تعداد و انگنت ولا محدود درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حضرات، یہ دین رحمت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، کیونکہ وہ بھی رحمت والا ہے، وہ بھی بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے ہمارے لیے دین رحمت کو پسند فرمایا اور اس دین کی اشاعت کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہزاروں پہلو ہیں، ان میں سے سب سے نمایاں پہلو اگر کہا جائے تو آپ کا رحیم و کریم ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحیم و کریم، بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی مہربان اور اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز، کہ آپ کی سی مثال اور آپ کی سی رحمت اور شفقت ساری دنیا میں کسی کی پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا مجسم بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور آپ نے جو رحمت اور شفقت کی اس کے کئی ایک نمونے آپ کی سیرت طیبہ کے اندر ہم کو مل جاتے ہیں۔ آپ نے اسی رحمت کے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی جو عفو اور درگزر کا معاملہ فرمایا، وہ آپ کی سیرت کے نمایاں پہلو میں سے ہے۔ وہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، وہ جنہوں نے آپ کو بہت ہی ستایا تھا، تکلیف دی تھی، وہ جنہوں نے حالت سجدہ میں آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی تھی، وہ جنہوں نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، وہ جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ جنہوں نے آپ کو ہر طرح کی تکلیف دینا پسند کیا تھا، آج عالم یہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت مکہ فتح ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ ایک وہ دور تھا جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکے کی سرزمین سے، آپ کے وطن سے، آپ کی بستی سے، آپ کے شہر سے آپ کو نکالا جا رہا تھا، یا آپ نکلنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ ہجرت کا وہ واقعہ سبھی کو یاد ہے۔ بستی سے نکلتے ہوئے کعبے پر کچڑتی سی نگاہ دوڑاتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مکہ، تو میری جان سے زیادہ عزیز ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر کیا کروں، یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ ظاہر بات ہے کہ جس مٹی میں آدمی پلتا بڑھتا ہے، اس مٹی سے محبت ہوتی ہے اور اس سے پیار ہو جاتا ہے اور اس کی کشش ہوتی ہے۔ کسی کو اگر یوں ہی اسے اس بستی سے نکال دیا جائے، یا وہ نکلنے پہ مجبور ہو جائے، ترک وطن کرنے پہ مجبور ہو جائے، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ رحمت اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی
बड़ी तकलीफ़ हुई थी, आप बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ हिजरत फरमा गए थे, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको फातेह की हैसियत से दाखिल फरमाया इसी मक्के के अंदर। सभी की जान के लाले पड़े हुए थे, सोच ये रहे थे कि आज हमारी खैर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एक मुजदे जान फजा के तौर पर लोगों ने सुना। आपने फरमाया कि ला तसरिबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलखा, कि आज तुम्हारे लिए कोई गिरफ्त नहीं है, आपकी कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, जाओ आज सब के सब तुम आज़ाद हो। और मैं वही कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था। मेरे भाई यूसुफ को उसके भाइयों ने बहुत सताया था और कुएं की नज़र कर दिया था। मिस्र के बाजार में वो फरोख्त किए गए थे। कई तकालीफ के बर्दाश्त करने के बावजूद उन्होंने अपने भाइयों के साथ जो अफ़ो और दरगुजर का रहम करम का मामला फरमाया, आज मैं भी तुम्हारे लिए वही रहम करम का मामला फरमाता हूँ कि आज तुम्हारी कोई गिरफ्त नहीं होगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी थी और आपका जो है आपका अफ़ो और दरगुजर का और आपके अखलाक का और आपके तरहम का मामला था। ये तो इंसानों के साथ अगर हम देखते हैं, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, एक ऊँट आता है और आपके पैरों पर अपनी जबीन रगड़ता है या उसका चेहरा अपना रख देता है। आप समझ जाते हैं रहमतुल्लिल आलमीन थे कि ऊँट मुझसे अपने मालिक की फरियाद कर रहा है। आपने उसे तलब किया और पूछा कि ऊँट तुम्हारे ताल्लुक से शिकायत कर रहा था कि तुम उसकी देख रेख नहीं कर रहे हो। याद रखो कि ये बेज़बान जानवर हैं, तुम उसके मालिक हो। अगर इसके साथ किसी भी तरह की तुम्हारी बेइतनाई होती है तो ये नाकाबिल मुआफ़ी है। और आपने उसे वसीयत की कि जानवर के साथ अच्छा मामला किया। और यही नबी रहमत जिस मिंबर पर, जिस खजूर के कटे तने पर खुतबा दिया करते थे, मिंबर बन करके जब तैयार हो गया, आपने मिंबर पर खिदमत देना शुरू किया तो आपने उस तने से रोने की आवाज़ सुनी। गोया कि वो तना आपकी जुदाई को बर्दाश्त ना करते हुए रो रहा था। ये भी आपकी रहमत की दलील है। गरज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए रहमत बन करके आए थे। और आपने देखा कि एक मौका वो था जब आप किसी गज़वे से लौट रहे थे, आपने तलवार लटका दी खजूर के तने से और आराम फरमाने लगे। एक शख्स ताक में था, दुश्मन आपका, वो आता है और तलवार लेता है, कहता है कि मोहम्मद, आप बेदार हो जाते हैं, आपकी आंख खुल जाती है। कहता है कि मोहम्मद अब तुम्हें कौन बचाएगा? आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह बचाएगा। अल्लाह आपके ज़ुबान से निकला, हाथ उसके कप कपाए, तलवार गिरी और वो माफ़ी मांगने पर मजबूर हुआ। अल्लाह के नबी ने उसे माफ़ कर दिया। ये नबी का उसवा है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसना है, नमूना है। हम मुसलमान हैं। मुसलमान इस माने में कि हम नबी के उसवा के पाबंद होंगे और नबी की सीरत पर हम चलेंगे। हम में से जब कोई शख्स किसी भी तरह का कोई भी नारवा बर्ताव करता है तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं, इंतकाम लेने पे उतर आते हैं। मगर नबी ने बहुत ही कम इंतकाम किसी से लिया है, बल्कि आपकी सीरत तय्यबा इंतकाम के पहलू से खाली है, इल्ला ये कि वो दुश्मन जहाँ सख्त दीन का दुश्मन रहा हो, आपने उसके लिए सज़ा तजवीज़ फरमाई। मगर ज़ाती तौर पर आपने कभी भी किसी से इंतकाम, ताइफ का वो सफ़र सबको याद है, बार बार खुतबा इसका जिक्र करते हैं, कितना दिलदोज़ वाक़िया कि नबी के साथ क्या शरारत की गई। कुछ औबाशों को लगा दिया गया, पत्थरों से मारा गया, आपको लूहुलहान किया गया, बदन से खून रिश्ता हुआ, आपके जूते में जमा हुआ, आपको आबादी से आपके गुलाम ने बाहर लाया। वो फरिश्ते जो पहाड़ों पर मामूर थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो ताइफ की इस बस्ती को हम इन दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस करके रख दें। मगर आपने कहा कि नहीं। आपने ही दुआ फरमाई थी कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरे कौम को हिदायत नसीब फरमा के नहीं जानती।
आपने अपने दुश्मनों को दुआएं दी हैं। ये सीरत का बहुत ही बड़ा पहलू है कि हम इससे आरी हैं। हमें कोई तकलीफ देता है तो हम उसके दर पर आज़ार हो जाते हैं, बल्कि इंतकाम लेते हैं बढ़ चढ़ करके, मगर कभी भी हमारी ज़बान से दुआ नहीं निकलती कि अल्लाह इसे हिदायत दे। अल्लाह के नबी ने अपने दुश्मनों को हिदायत की दुआ दी थी कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। और आपने यही कहा था कि अगर ये लोग आज मुझे मानते नहीं हैं, मुझे पहचानते नहीं हैं, ना जाने कोई बात नहीं है, मगर आगे को उनकी नस्लें इस्लाम को, ईमान को पहचानेंगी और वो दीन के करीब होंगी। और ऐसा ही हुआ। आगे को चल करके ताइफ वालों के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत के दरवाजे खोल दिए। ये होता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, गुजारिश सीरत तय्यबा की रोशनी में यही करनी है कि हम नबी के उम्मती हैं। नबी की सीरत, नबी का उसवा, नबी का तरीक़ा हमारे लिए नमूना है। उसी तरीक़े को, उसी उसवे को अगर अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है। हम बेहतर मुसलमान कहलाएंगे और माशरे पे अपने सीरत के बेहतरीन नकूश छोड़ सकेंगे। एक बहुत ही बड़े माशरे को मुतासिर कर सकते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को हमेशा मलहूज़ खातिर रखें और आपकी तालीमात को मलहूज़ खातिर रखें। आपकी इत्तिबा करें। इत्तिबा ही में कामरानी है और कामयाबी है। नबी की इत्तिबा ही हासिल ईमान होती है और इसी में हमारी कामरानी और कामयाबी है। अल्लाह हम सबको नबी की सच्ची इत्तिबा करने की और आपके उसवे हसना पे चलने की और हमारे अंदर अपने अंदर नबी की रहमत और राफत और रहमत और तलत्तुफ और ताअत्तुफ के सिफात को पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अभी आप हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ जमील जामी हफ़िज़हुल्लाह व तआला का किताब समाअत फरमा रहे थे। मौलाना के ताल्लुक़ से कुछ तारुफ़ मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मौलाना हिंदुस्तान के मारूफ आलिम दीन हैं और सूबे आंध्र प्रदेश के जमीयत आले हदीस, जो सूबे जमीयत आले हदीस आंध्र प्रदेश है, उसके आप नायब अमीर हैं और तकरीबन 20-25 साल तक आप कर्नूल एक मशहूर मुकाम है हमारे आंध्र प्रदेश का। और ये जब आंध्र प्रदेश बनने से पहले ये आंध्रा की राजधानी थी, तो एक मशहूर मुकाम है और वहाँ पर हज़रत मौलाना मददुल्लाह तकरीबन 40-45 साल से आप रहते हैं। आप जामिया मोहम्मदिया रायदुल से फारिग हुए और उसके बाद आप वहाँ पर उमर अरबिक हाई स्कूल में आप मुदर्रिस हो गए फ़ारसी के और तकरीबन 38 साल तक आपने मुलाजिमत की। इस मुलाजिमत के दौरान आप जिन बच्चों को, जिन तलबा को पढ़ाते थे तो उनके फ़ारसी का नतीजा 100% यानी 100% 38 साल तक बराबर आता रहा। तो जिसकी वजह से आपको ज़िले का सबसे बेहतरीन टीचर और सूबे का सबसे बेहतरीन टीचर और मुल्क का सबसे बेहतरीन टीचर का अवार्ड 1993 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों से आपको दिया गया। और मौलाना मशहूर इस्लामी शायर हैं और आपके कई किताबें और इस यानी शायरी में आपका अक्स जमील छप चुका है। तो जो आपका शेरी मजमुआ है और दूसरा शेरी मजमुआ ज़ौक़ जमील के नाम से बस छपने ही वाला है और इसी तरह कौल जमील भी है और ज़िक्र जमील भी है, ये भी तैयारियों के मरहले में है। तो मौलाना न सिर्फ ये कि आप मौलाना हैं बल्कि एक मारूफ शायर होने के साथ साथ आप बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और आपने कोई भी मतलब कहीं से भी कोई मजलूम पहुंच जाए तो उसकी फरियाद रसी करना और कोई बंदा परेशान हो तो उसकी परेशानी को दूर करना और अपने अहबाब से कराना, ये मौलाना की ख़ास आदत है। और हमारे कड़पे ज़िले में जिस वक्त जमात अहले हदीस नई उभर रही थी तो हम लोगों को सबसे पहली जो मदद मिली वो मौलाना की ज़ात से ही थी और ज़िला कर्नूल से मौलाना ने हमारे लिए बहुत बड़ी रकम इकट्ठा किया और बतौर ताउन के आपने क्या है हमको और हमारे अलावा जितनी भी जमातें जो अभी नई क्या उभर रही थी
तो ये इनको उभारने में और दीन इस्लाम और बिलखुसूस मसले अहले हदीस को आप हमारे इलाके में उभारने में आपकी शख्सियत ये नुमायाँ पहलू रखती है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौलाना को सेहत आफियत अता फरमाए। और मौलाना उम्मन जिस तरह उलमा इकराम आते हैं चंदे के लिए, लेकिन मौलाना यहाँ पर किसी चंदे वंदे के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मौलाना को मैंने बार बार दावत दी कि आप कोई तशरीफ़ ले आए, लेकिन बहाना चाहिए था ये किस बहाने में आऊँ। तो मौलाना के फर्जंद है कतर में इमाम है, मस्जिद के इमाम हैं, तो मौलाना उधर अपने फर्जंद से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते लाते मौलाना ने मेरी दावत को भी कबूल कर लिया और यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और इंशाअल्लाह जो कुर्तबा का प्रोग्राम है उसमें मौलाना को एजाज़ी शील्ड दी जाएगी और आपको आपकी जो 40 साल खिदमत है तो उसमें मौलाना की खिदमत का एतराफ़ करते हुए मरकज़ दावतुल जालियात और जमीयत अबनाए क़दीम जामिया मोहम्मदिया राजौरी की जानिब से आपको शील्ड भी पेश की जाएगी। तो इंशाअल्लाह वो जो हमारा 1 मार्च को जो हमारा कुर्तबा में प्रोग्राम होगा तो उसमें मौलाना का बयान भी होगा, खिताब भी होगा और आपको एजाज़ भी दिया जाएगा। तो मैं भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि उस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।